हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई मेंस और नीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इन एग्ज़ाम्स का शेड्यूल आ चुका है। जेई मेंस का एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर को होना है, वहीं नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को शेड्यूल्ड है। एक्चुअली ये एग्ज़ाम्स अप्रैल मंथ्स में होते हैं, बट कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया। उस टाइम जब डेली केसेस 400 टू 500 थे, तब गवर्नमेंट को लगा कि हम ये एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं और इसे पोस्टपोन करना बेहतर है। बट अब जब डेली केसेस 60,000 प्लस हैं, तब गवर्नमेंट चाहती है कि ये एग्ज़ाम्स हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिचुएशंस हमारे बिल्कुल कंट्रोल में है। अ, अभी तो हमने इसका पीक भी नहीं देखा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के अकॉर्डिंग जेई मेंस में लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं, वहीं नीट में ये आंकड़ा 15.9 लाख्स का है। अगर इन्हें कंबाइन किया जाए तो अप्रॉक्स 24 लाख स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने लोगों को हम एक ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने के लिए ही मजबूर कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशंस में जहाँ 60,000 प्लस केसेस डेली हो रहे हैं। ये घर से निकलेंगे, एग्ज़ाम सेंटर्स जाएंगे, बीच में होटल्स में रुकेंगे, खाना खाएंगे। बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये खुद को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली खुद को इन्फेक्ट होने के साथ साथ ये कोविड कैरियर्स बन सकते हैं। ये वापस जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव घर्स पे, वहाँ अपने रिलेटिव्स, अपने गांव वाले, अपने पड़ोस में ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारा मोटिव एग्ज़ाम कैंसिल कराना बिल्कुल नहीं है। हम बस इसे पोस्टपोन कराना चाहते हैं तब तक जब तक कि कंडीशंस कुछ नॉर्मल ना हो, और जब तक हमारे कंट्रोल में ना आ जाए कंडीशंस। सो हम बस इतना चाहते हैं कि अभी एग्ज़ाम्स बिल्कुल ना हो। अभी स्टूडेंट्स मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। अ, आप जब भी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में हो, आप 10 दिन के नोटिस पे आप एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फ्लड एक्सेट्रा, जिसके बारे में डिटेल में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपसे कुछ शेयर करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। Hey everyone, myself Nivedita. I would like to put my views over the JEE examination and NEET examination which is going to conduct in the first week of September. Okay, so I would like to keep some point of mine. Okay, maybe it would be wrong or right, I don't know, but I would like to keep my point. Okay, so if I talk about the examination, yeah, it is very important to be held, right? If you have good preparation, you will always want examination to be conducted as early as possible, as no one wants to sit idle at home for so long, right? As already we are suffering with pandemic and we are sitting idle at home, so why would we want some more idleness, right? We will want some things to happen in our life, as examination. As if we have joining, then joining should happen. If you have examination, then examination should happen. If a result pending, then result should be published, right? So these things should happen, right? But in this case of COVID-19, where there is a very huge number of cases in our country, okay, many people are affected by this coronavirus, right? So in this case, uh, let's suppose if somebody is affected of lungs issues, like me, I have the lungs issues right now, okay, and so many people have asthma issue as well, right? And asthma sees no age, like students mostly suffered from asthma, right? And obviously adults also, old also, but student as well suffered from asthma in large number, okay? So just think of them. If they are they come to examination center, and as there will be the huge number of gathering, obviously, because it is JEE examination, need examination, in which we large number of students participate in our country. So just think of them, if they are exposed, and if they become positive of COVID. So just imagine the situation, what would they face after they will come back to their home after examination, right? They may face the severe issue, okay, because they have already the infection in their lungs, they have already the asthma problem, and they are just infected with the COVID also. So you can't think of them, right? And also at center, student like of JEE and NEET, they come with
their parents at the examination center, right? So they come with their parents, and many of the parents would be of the above 50 or above 60 age, right? So they would also be exposed to that environment, which they are actually not allowed, right? So conducting examination is very high risk in these days, if until unless the vaccine doesn't come in the market, right? So I think we should wait for the vaccine for examination to be conducted. And still, if it is conducting, then one should use proper precaution, like one should wear the mask at the examination center, maintain the social distancing, avoid getting close to the people at the examination center, right? And that's it. Thank you. मेरा नाम नित्य है और अभी जो जेई की परीक्षा होने जा रही है 1 सितंबर से, तो मेरा क्वेश्चन बस एक ही है कि लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ और बिहार में तो फ्लड आए हुए हैं हर जगह, आसाम में फ्लड आए हुए हैं और लोगों को के घर में पानी घुसा हुआ है, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे। ना तो सब लोग, और जो लोग निकल भी सकते हैं बाहर, जिनके यहाँ बाढ़ नहीं आई हुई है, तो सब लोग अफोर्ड तो कर नहीं सकते कि प्राइवेट अपने अपने वैन्स में जाएं, क्योंकि जो रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो सारे बंद है। ये तो एक बहुत बात हुई। दूसरी बात है कि इन्फेक्शन कितना बढ़ जाएगा। कोविड जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही जा रही है कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप जानबूझकर बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। बच्चों को नहीं, उनकी फैमिलीज़ को, सब लोग बन जा रहे हैं। बस इस यहाँ पे स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी लाइफ देखें या करियर। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि ऐसी सिचुएशन में ना डाला जाए स्टूडेंट्स को। प्लीज़ पोस्टपोन द एग्ज़ाम। Hi everyone, this is Nimisha here. I am basically from Madhubani. मेरा भी यही मानना है कि अभी जो NTA ने डिसीजन लिया है, like JEE exam from 1 to 6 September and NET exam 13 September onward, I think this is not at all safe. ये बिल्कुल उसी तरह की बात हो जाएगी, इसी तरह की बात हो गई कि मतलब आप को कोई मतलब नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ कितने रिस्क में जाएंगे इस चीज़ से, कितने बच्चे रिस्की और कितनी सारी जो लाइफ्स हैं वो रिस्क में जाएंगी। ना बस बच्चों की लाइफ, उनकी पेरेंट्स, उनकी फैमिली, और जो उस दौरान वो जितने लोगों से मिलेंगे वो सबकी लाइफ हम रिस्क कर रहे हैं। आप रिस्क कर रहे हो इस एग्ज़ाम को अभी लेकर। अगर वैक्सीन बन गई होती और तब आप ये एग्ज़ाम ले रहे होते कि चलो ठीक है भाई, वैक्सीन बन गई है, अगर फैल भी जाएगा लोगों में तो हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर नॉट, as a country, we are not in a condition to protect our own citizens from this deadly coronavirus. I think कि कितने सारे लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और आप जो इतने सारे स्टूडेंट, जो लाखों स्टूडेंट जो आईआईटी और नेट जेई और जेई मेंस और नेट के एग्जाम देने वाले हैं, आप उन सबकी लाइफ रिस्क कर रहे हो, साथ में उनकी फैमिली की लाइफ भी रिस्क कर रहे हो, उनके पेरेंट्स, उनके लाइक जितने लोगों से भी कांटेक्ट में, आप सबकी लाइफ रिस्क कर रहे हो। तो चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार और असम के स्टूडेंट के साथ लाइक अभी बहुत सारी ऐसी भी सिटीज हैं, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ अभी एक और इस कोविड-19 तो एक है ही जो कि उन्हें परेशान कर रहा है ऑलरेडी, साथ में फ्लड सिचुएशन। जैसे कि बिहार, मधुबनी क्यों मैं हूँ वहाँ पर, वहाँ मेरे रिलेटिव हैं एक, उनके घर में पूरे लाइक कि नी तक पानी है। और मतलब, तो मेरा पॉइंट इस बात को बताने का ये है कि एक तो आप कोरोना वायरस, एक हमारे दिमाग में एक मेंटल एक टेंशन ला ही रहा है, साथ में एक फ्लड सिचुएशन है अभी बिहार में जो चल रही है, जिसको कि बिल्कुल भी अभी कंट्रोल नहीं कर पाई है हमारी गवर्नमेंट। तो तो मेरा ये कहना है कि इससे मेंटली जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत वीक हो जाते हैं। और आप ले रहे हो जेई मेन के एग्जाम, जेई मेंस, और चूंकि हम जानते हैं कि उस एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठेंगे, जो एग्जाम देने बैठेंगे स्टूडेंट,
और जो बच्चे सच में जिन्होंने पढ़ाई की होगी, जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से किए होंगे, और अगर उन्हें इस सब चीज़ें, इस सब chaos के बीच में अगर उनके दिमाग पर कुछ भी लाइक कि ऐसा इफेक्ट हो कि मतलब मेरे घर में, अब आपके घर में अगर इतना इतना पानी हो और आपको कहा जाए कि चलो भाई पढ़ाई करो एंड ऑल, आपको तो पढ़ाई करना है, तो आप सोचो आपके माइंड पर कितना प्रेशर बनेगा। और उस प्रेशर के साथ आप उन्हें कह रहे हो कि आप एग्जाम दिलवा रहे हो उनसे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक दिस इज एट ऑल सेफ टू टेक द एग्जाम्स राइट नाउ इन सितंबर। अगर अब लेट हो ही चुका है अगर, तो आई थिंक 2-3 महीने और लेट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने सारे स्टूडेंट की लाइफ को रिस्क करना, आई डोंट थिंक दैट्स एट ऑल a good decision, or not only of students lives, we are risking the lives of their families, their neighbors. I think इससे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगी। तो आपको एनटीए को इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर मोर मंथ्स। अगर हमने इतना वेट किया है तो आई थिंक 2-3 मंथ और भी हम वेट कर सकते हैं। या दैट्स ऑल, थैंक यू। Hello everyone, this is Shaluja and I am from Munger district of state Bihar. So we all are here to review the agony of students who are in extreme distress due to COVID-19 outbreak, and amid of this worsening pandemic, the Minister of Education on Friday decided not to postpone JEE and NEET exam, as the statement told by them is precious year of students cannot be wasted. I agree with it, but our health should always be our first priority, right? I mean, what's the use of rank card when we can't cherish it? For example, I am from state Bihar, and the state of Bihar has only 7 centers for JEE Main, and for NEET, centers are available into only 2 districts of Bihar. Then is it really possible to maintain social distance with such huge number of students and such less number of centers? I assume that protocols of the social distancing will be followed inside the centers, but what about the crowd of parents outside them, as some states conducted the exam despite opposition, and we got to see how social distancing norms have been broken ruthlessly. So the protocols mentioned under SOP are highly unrealistic. Even inside the exam centers, several complications like those of same thumbprint scanners, same seats for face verification unknowingly, these all are carriers of this deadly, even airborne virus, and it will create a chain that will lead to a disaster. Just think about many of the students who are COVID positive at present. They will definitely not be in the correct state of mind to attempt the exam. And what about their future and career? In SOP, it is mentioned that if someone has high temperature, then that person will be shifted to a new room. So think how much mental pressure that student will face in the whole time of exam. And many of the students have returned to their hometowns in different states, so traveling back to states to give exams would not only endanger their lives but their grandparents' lives. As you may say that students are of young age and can be cured easily, but what about their family members, right? So I would just request government, as many of the prominent exams like of UPSC, CBSE, CA, Hotel Management Joint Entrance Exam has been postponed, as it has been slogan of the students that as we all don't want cancellation of exam, what we are demanding is postponement in this unprecedented time. So I think there should be a relevant talk of concerned authorities with students, as their efforts should not end up like wasting of their effort and career. Some alternative admission methodologies may be opted, and many more options would be available, as where there is a will there is a way, and our government has proved itself many times before and again, hoping for something better and best. Thank you so much. एनटीए ने बोला है कि वो एग्ज़ाम लेगा, जेई मेंस और ये नीट का, ठीक है, वो लोग लेंगे एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले तो इन बातों में ये देखा जाए कि रिस्क कहाँ है और किसको है। ये बात तो बच्चे देख ही रहे हैं कि रिस्क है किसको, ठीक है ना। जैसे कि अगर 11 लाख बच्चे, मैंने देखा है कि 11 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना। तो वो जो एग्ज़ाम देंगे 11 लाख बच्चे, उनके साथ उनके 11 लाख पेरेंट्स होंगे जो एग्ज़ाम दिलवाने जाएंगे। अब अकेले तो जा नहीं सकते हैं ना, गवर्नमेंट थोड़ी एक बच्चों को छोड़ देगी, ठीक है। उनके पेरेंट्स है वो तो नहीं छोड़ेंगे,
ठीक है ना, वो एग्ज़ाम दिलवाए जाएंगे अपने बच्चे को। अब एग्ज़ाम देने वो पेरेंट बच्चे तो अंदर चले जाएंगे, मान लीजिए कि उनके लिए सारा सेफ्टी है, ठीक है, वो सारा चीज़ का सेफ्टी उनके लिए है। लेकिन जो पेरेंट्स बाहर रहेंगे, क्योंकि कोरोना थोड़ी देखता है कि बच्चों से फैलना है या बड़ों से फैलना है, वो तो फैलेगा अपना यार, ठीक है, वो तो अपना स्प्रेड करेगा। वो गार्जियन जो नीचे ज़मीन पे बैठे रहते हैं, रोड पे बैठे रहते हैं, दुकानों में बैठे रहते हैं, आप लोग ने देखा ही वो बात कि वो वहाँ बैठे रहते हैं, उनका सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है ये बता दें एनटीए, ठीक है ना। दूसरा, उनके साथ अगर कोई बच्चों को क्या बोल रहा है एनटीए, ये इस बात पे आप ध्यान दें कि वो उसने एक एफिडेविट दिया है कि बच्चे अपना सैनिटाइजर लेके आए, वो अपना पेन लेके आए, अपना क्या कहते हैं ये मास्क पहन के आए, और वाटर बोतल लेके आए, सारा कुछ लेके आए बच्चे। इस बात से साफ पता चलता है कि एंटी को ये लग सकता है, ये लगता है उनको अंदर से कि कोरोना हो सकता है, और उससे बचने के लिए ये सैनिटाइजर लाएं, ये मास्क लाएं। तो ये डर तो है उसमें भी, लेकिन जो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम तो लेनी है, ठीक है ना। अब केसेज इंडिया में कितने वो सबको पता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है एनटीए से कि आप लोगों ने अप्रैल और मई जो हर साल एग्ज़ाम होता है उसमें क्यों नहीं एग्ज़ाम लिया, क्यों आपने उस दिन एग्ज़ाम नहीं लिया, उस वक्त एग्ज़ाम नहीं लिया, क्यों? अब उसका रीज़न ये है कि आपको उस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, उसमें आप लोग एग्ज़ाम ले नहीं सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि उस वक्त आप में डर था कि कोरोना फैल सकता है, उसको फैलने से रोकना है, ठीक है। तो कोरोना केसेस तो कम थे, लेकिन आप में डर था कि कोरोना फैल सकता है। बट अब केसेस जब ज़्यादा हो गए हैं तो डर खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद संपूर्ण डर खत्म हो गया है देश से कि कोरोना तो हो ही नहीं सकता है यार, ठीक है, एग्ज़ाम लो, जो करना है करो, कोरोना नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपका डर खत्म हो गया। लेकिन डर खत्म हो गया है इसका मतलब ही नहीं कोरोना भी खत्म हो गया। कोरोना वैसे ही है और बढ़ ही रहा है हर रोज, ठीक है। एक बात तो ये, और दूसरी बात, तो आपको ये जवाब देना होगा कि आपने उस वक्त एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया। और अगर एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है तो सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे कि बच्चों को वो जिस तरह से उसने एफिडेविट लिया है बच्चों से और बोला है कि ये सब चीज़ करो और एग्ज़ाम देने आओ, उस तरह से एनटीए भी एक दे कि अगर किसी बच्चे को, और बच्चों से पहले उनके गार्जियंस को, क्योंकि बच्चों का तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है, उनके गार्जियंस को डायबिटीज होते हैं और कुछ कुछ बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, थायराइड होते हैं, और भी बहुत सारी गैस का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कितना गिनाओ, ठीक है। तो उनको कुछ होता है तो उसका रिस्क कौन लेगा? अगर बच्चे के पेरेंट्स को कुछ होता है तो उसका रिस्क कौन लेगा? और एक और बात जो वहाँ पे देखा जाए कि आजकल बहुत सारे नीट के और जेई के बच्चे ये सुसाइड कर रहे हैं, उसका भी रीज़न यही है कि अब एग्ज़ाम्स जो अचानक से एनटीए ने कह दिया अपना डेट, बीच में पहले भी इन्होंने अपना डेट कहा था लेकिन उनको पोस्टपोन करना पड़ा था इनको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जिसमें पोस्टपोन कर रहे थे उस समय के नंबर ऑफ केसेस आज के नंबर ऑफ केस से कम है, फिर भी आज पोस्टपोन नहीं हो रहा है। इस पर सोचने वाली बात है, ठीक है। दूसरा कि बच्चे, मैंने देखा है कि वो सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न भी यही है। अब होली में बच्चे आए थे, उन्होंने अपना, जैसे नीट के बच्चे को ले लो तो उन्होंने वो होली में आए थे, और होली में वो आए थे बिना अपने नोट्स के, जो उन्होंने बनाया था पूरे 2 साल पढ़ के, उसके बिना, उस नोट्स के बिना वो आए थे कि चलो कुछ दिन फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद जाएंगे तो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। वो एग्ज़ाम तो नहीं हुआ और उनका नोट्स भी वहीं छूट गया है। तो अब अगर एग्ज़ाम का डेट निकल गया तो वो नर्वस हो चुके हैं थे, तो उन्होंने उस नर्वसनेस को सोचा कि सुसाइड करके ख़त्म कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वो खुद ही ख़त्म हो गए, ठीक है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो हुआ भी इसी के रीज़न से, ठीक है। और ये एनटीए को सोचना चाहिए, भारत एक ऐसा देश तो है नहीं कि जहाँ पे हर चीज़ एक साथ सोचा जाए और हो जाए। गलतियाँ होंगी, ये बात सबको पता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा और जाने जाएंगे, उसका रिस्क एनटीए तो ले नहीं सकता क्योंकि जाने तो वापस हो नहीं सकती हैं। और एक कहावत है जो थॉमस एडिसन ने कहा है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ओके। बट अगर एग्जाम अभी होते हैं तो सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर और इवन डिसाइड योर लाइफ वेदर यू लिव और नॉट, ओके। सो इन सब बातों को सोचते हुए एनटीए को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम हम लोग अभी ले रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और इसका भी जवाब देना चाहिए कि अगर अभी ले रहे हैं तो अप्रैल, मार्च या मई में क्यों नहीं लिया गया जब उसका एकदम परफेक्ट टाइम था। थैंक यू। जिस तरीके से कोविड केसेज बढ़ते आ रहे हैं यह बहुत ही भयावह है, फिर भी इसमें एग्ज़ाम करवाना एक आत्मघाती सा हो सकता है, और इसीलिए अभी परीक्षा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस माहौल में विद्यार्थी भयमुक्त होकर के अपनी परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और फिर कोविड की ही बातें नहीं है, कुछ राज्यों में बाढ़ आई हुई हैं,
तो कहीं कोविड के कारण लॉकडाउन है, तो ऐसे में पूरी यातायात की व्यवस्था ठप है, जिसमें छात्रों को आने में और बहुत ही मुश्किलें का सामना करना होगा। उसके बाद सिर्फ एजेंसियां कहती हैं कि वो सारे कोविड को लेकर के नियम का पालन करेगी और व्यवस्था करके रखेगी परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन छात्रों को सिर्फ परीक्षा केंद्र तक ही तो वो नहीं आएंगे, तो वो उन्हें आने के क्रम में भी कुछ कोविड के केसेज हो सकते हैं, जाने के क्रम में हो सकते हैं, रहने के दौरान या जहाँ खाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी परीक्षा लेना एक सही मैं नहीं मानता, और एजेंसियों को सिर्फ परीक्षा करवाने के पीछे ना जाकर के कुछ अन्य विकल्पों की भी तलाशनी चाहिए। जो नए सत्र में कैसे एडमिशन हो, इसके भी नए अन्य विकल्प पे सोचना चाहिए। सिर्फ परीक्षा ही को एकमात्र पहलू लेके नहीं चलना चाहिए। बस मुझसे अभी यही कह सकता कि अभी परीक्षा लेना सही नहीं होगा। Hi, I'm Rashna from Delhi. I was also equally worried about this present situation where students, their voices are not being heard, and all the decisions are making in a haste just to conduct the examination. Coming to the main point is that whether conduction of examination in this September, which has been scheduled from 1 to 6 September, and for JEE it's 13 September. It's like playing with the lives of millions of students. Yeah, seriously, I mean literally, you can imagine such a tender age, 17 and 18. These students will hardly pay enough their things. We have also prepared when we had passed out. Since I am also a student of PCMB, then I had appeared for both examination. I feel what kind of pressure is there when you are choosing your exams, and when you are appearing for it. I would just take an example. Since I'm living in Delhi, then I would give us a little bit example. When I appeared for the examination of SSC CGL and SSC CGL in the month of March, then what happened when the cases were in CGL was around 400 itself. Still, the condition of the exam center was not as expected. We were provided with the sanitizer, and what they were simply like just pressing, and we were rubbing hands. Nothing like that. Means nothing more than that. Even the social distancing, which is the need of the hour, it was put on a stake. I was surrounded by crowd. In deep inside, I was saying, "Oh, please God, I should not catch COVID." And just think of and those who have filed a petition that it should be conducted, the exam should be conducted at the scheduled date, as it would be injustice for those who have been preparing for 2 and 3 years. Let me just say a point. Let it be your ward. If your ward is a NEET aspirant, okay, he has appeared for the examination and is becoming a doctor, then he would only understand what's the value of a life. For the 1 year of career, for the 1 year of academic session, you are putting lives of so many of students at the stake of a danger. How kind of this audacity this government could have? The major thing is that, and also think about whether now giving to the solution. I am not saying that we should cancel the examination, but yeah, I am saying that we should postpone it till we should wait till December or say November. It won't create a much difference if you have lost 2 and 3 months. I mean, at this age, when their foundation course for the career has been, it's a foundation for your career. Okay, we are doing agreeing with this, but academic calendar could be adjusted. What I would like to suggest is that you can take the examination. First of all, give it approval, not just by written work which has been given by the guidelines of the NTN governing agencies. Like, yeah, we have increased the 50% of examination center. Last year it was 2600, now it is 3000, more than 3000. But will it do justice? No, not at all. Just think of students who have been coming from 200, 300 kilometers from there. They have to book, they have to pre-book, they have to stay somewhere else, and the whole path would be get traced or infected. Once they get infected over there,
There is a huge crowd over there. If the exam got conducted and they have appeared it, and suppose they got infected in their mains level, or say let it be they are lucky enough. Yeah, I would say this is all the chances of lucky. So they are lucky enough that they haven't got infected while there, but after that they got infected. Then what? Whether the parents would be struggling to pay the fees of the examination, pay the exams of institution allotted, or they would be taking care of themselves or their wards who have infected him and his or her parents. As per the reports which has been given by the various agency of worldwide, that the consequences of corona would be for at least 10 years. Its impact would be shown not only on health wise, but all the government, all the decision making policies, it would be taken as a consideration. So why not education institution? How can you deny that for this pandemic will let go and come, but we can't sacrifice our professors at NIT, our professors at IIT and AIIMS are good enough, and they are well educated. They could just leave on to them. They could handle it. I mean, they could handle it, how to adjust the academic years. They could be given extra classes. Even the public holidays could be reduced. This could go over there. At this point of time, giving examination as a student, if I was a student, I would giving examination at this point of time would be more torturing than a chamber gas which has been put on by Hitler. Oh, okay. So thank you. This is all I wanted to say.